लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लॉट ऑफ कॉलेज ने मुझे रिजेक्ट किया, बोला In कि ओ Bangalore. इन बैंगलोर, बोला कि ओ नो नो, you are from Bihar, I cannot give you. Spiritual things made me realize that I'm young, my focus has to be to develop myself. Yeah. इसका कोई नहीं, इसका भगवान है. 1993 मार्च में यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. I was in Bombay Stock It was in Bombay Stock Exchange. The Taj. Yeah. के time पे भी that happened. You had a meeting over there. I had and a वो meeting. biggest bomb blast Yeah. हुआ था. How do you know what's your goal in life? That is like the main question. कि how do you know what's my goal? नमस्कार में बहुत चमत्कार है. Namaste and welcome to Baaton Ka Safar. This is my very first podcast episode and I'm with my biggest cheerleader, my biggest support and the coolest Gen X, my dad. So let's dive into the episode and let's learn from him how he went through his journey of life. Thank you for your time and thank you for coming. So how do you feel? Great, Tanisha. Thank you for inviting me on your podcast. And Yeah. I'm really glad to know. Once when you approached me and told me that you'll be having a podcast with your dad, and I was really very happy. मैंने सोचा कि चलो इस गुड दैट इन दिस प्लेटफॉर्म पे आई कैन गिव यू सम गाइडेंस, आपके व्यूअर्स को भी मैं कुछ बता सकता हूँ, एंड कुछ मोरल, कुछ सपोर्ट, हाउ डिड वी ग्रो फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल डेट, वो सब मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ. सो दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो टू give to your viewers, and it's really a proud moment. And for you me. have been my constant guidance. Like since childhood, I have been always listening to you. You have given me books to read, and always like wherever there's a problem or whenever it's my happiest moments, I know you have been there. Like you and Mama have been my friends throughout. Oh, so let's jump to the video. So, Dad, back when you were young, back in 1970s, when the communication was only like meeting people, that was the only mode of communication. And लोग जब letters लिखते थे, because अगर आपको किसी से communicate भी करना, you have to write letters. So how is it like growing up back then, and how was your childhood? Yeah, that's a good question, Tanisha. You have asked me a very good question. क्या हुआ? We are from 72 born, and Remember. now quite old at these generations. But again, when I was born in Bihar, in way back in 1972, and I still remember मेरे father जो थे वो he was in mining engineer, he was in mining. So उसके बाद हम लोग चले गए थे मध्य प्रदेश में मेरे पापा की पोस्टिंग थी, सो मैं मध्य प्रदेश में था. उसके बाद देन आई रिमेम्बर फ्रॉम देयर माय फादर मूव टू कश्मीर, और जब हम लोग कश्मीर में गए तो उसके बाद से मेरी मेमोरी कुछ चालू हुई, एंड देन आई रियलाइज दैट मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी मेरे पापा को कि दे डोंट वांट टू स्टे इन कश्मीर. एक तो प्रॉब्लम था ठंड की, बिकॉज मेरे पापा माइनिंग में थे, एंड माई मॉम नेवर लाइक टू बी इन दैट एरिया, बिकॉज एक तो बहुत ठंड होती थी, और सेकेंड हमारे नेबर्स बताया करते थे कि वहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉम्युनल रॉयट्स, जहाँ पे लोग हिंदुओं को वो लोग मारते थे, काटते थे. लॉट ऑफ स्टोरीज वो होती थी उस जमाने में. सो उसके बाद मेरे फादर moved out because it was not a good place. Although Kashmir was very beautiful, such a lovely place, itni अच्छी scenic view, but because of this communal riot, my mom never wanted to stay there. तो हम लोग वहाँ से move कर गए and moved from Kashmir, and उसके बाद हम लोग आसाम आ गए. तो मेरे पापा was in mining again in Assam. So where we were staying, वो जगह it was like Assam is also very beautiful place, very beautiful, lovely mountain, greenery, hill. तो हम लोग आसाम में थे. मुझे अभी भी याद है मेरे पापा को रो हाउसेस मिला हुआ था फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड हम लोग पीछे माउंटेन, सामने रोड, और उसके सामने नदी. इट वॉज सो लवली व्यू, एंड वे बैक आई वॉज वेरी नॉटी. तो मैंने क्या किया पढ़ाई के लिए, आई वाज स्टडिंग वेल, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी नॉटी. तो मुझे अभी भी याद है जब मेरी मम्मी मुझे टिफिन पैक करके भेजती थी, हम लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हुआ करते थे जो हम लोग स्कूल जाते थे. तो उस स्कूल में क्या हुआ कि
हम लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम दैट एरिया, जिस हम लोग कॉलोनी में रहते थे, तो हम लोग 6, 7, 8 बच्चे होते हुआ करते थे। सो वी यूज्ड टू गो टू द स्कूल। तो हमारे एक स्कूल बस हुआ करती थी। लेकिन मैं आई हार्डली रिमेंबर, मैं ज़्यादा करके स्कूल बस स्किप करता था एंड मैं वहाँ से ट्रेन से जाता था। बिकॉज़ उस ज़माने में जो बिकॉज़ माय पापा वाज़ इन माइनिंग, तो वहाँ से कोल के डब्बे हुआ करते थे। जब कोल के डब्बे एंड वो जो पुराने ज़माने के जो उधर इंजन हुआ, चुक जो चुक चुक कोल चुक। डालकर जो वो वैप बनाकर जो छुक, छुक, छुक करके चलती थी, तो उस ट्रेन से मैं जाता था, ज़्यादा करके। तो वो क्या होता था कि वहाँ पे मुझे एक अंकल मिले, उस अंकल से मैं बहुत ही हमेशा नमस्कार अंकल बोलते थे हम। बट बिकॉज़ मैं चाइल्डहुड से आई वाज़ वेरी फ्रेंडली, हुँ। मैं उनके साथ में फ्रेंडली वेरी फ्रेंडली, सो ही आल्सो यूज्ड टू से ही यूज्ड टू लाइक मी एंड मैं हमेशा सबको नमस्ते बोलता था, "नमस्ते अंकल, कैसे हो अंकल?" आई मीन दैट यूज्ड टू बी माय फ्रॉम माय चाइल्डहुड पैशन। मैं सबको हुँ। नमस्ते बोलता था एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज हेलो अंकल। तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे अंकल। अंकल को मैं बोलता था, अंकल आज मेरी बस छूट गई है, आप मुझे छोड़ दोगे? और वो जो ट्रेन जो थी मेरे स्कूल से ही होके जाती थी। तो वो अंकल क्या करते थे कि मुझे ही यूज्ड टू टेक मी ऑन इन द ट्रेन इन नियर द इंजन, वहाँ पे अपने हाथ साथ लेके जाते थे। वो लाइक द और मेन जो हाँ, जो हाँ, मेन इंजन के पास, इंजन हाँ। और असम में भी बहुत ठंड होती थी, तो मेन हुँ। इंजन के पास मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज़ आई आई बराबर। कैन गेट सम हीट। यस। और फिर वहाँ से जब मेरी स्कूल आती थी, आधे घंटे या 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद, वहाँ पर अंकल मुझे ट्रेन स्टॉप नहीं करते थे बिकॉज़ इट वाज़ नॉट परमिटेड टू स्टॉप। तो स्टॉप नहीं करते थे, मेरे हाथ पकड़ के मुझे नीचे छोड़ते थे और बोलते थे कि चलो दौड़ो। और जब मैं स्पीड पकड़ता था, तो मेरे धीरे-धीरे हाथ छोड़ते थे और फिर मैं अंकल को बोलता था, टाटा अंकल, बाय अंकल। तो एक रूटीन हो गई थी मुझे अंकल के साथ। फिर जब मेरे पापा को मालूम हुआ, जब स्कूल वाले ने कंप्लेन किया, जब स्कूल बस वाले ने कंप्लेन किया, तो मेरे पापा ने बहुत मारा, बोला, "यू आर सो नॉटी, डोंट डू दैट, इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी रिस्की।" तो सो लाइक दिस आवर लाइफ मूव्ड ऑन फ्रॉम असम एंड उसके बाद वी आई स्टडीड अप टू सेकंड स्टैंडर्ड इन असम। उस ज़माने में एलकेजी, यूकेजी नहीं हुआ करता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, और मैं थर्ड स्टैंडर्ड में जाने वाला था, तब तक पापा वहाँ से छोड़कर ही वांटेड टू बी क्लोजर टू हिज डैड, सो ओह! विथ माय ग्रैंडफादर। सो मेरे ग्रैंडफादर बिहार में थे, तो उन्होंने सोचा कि वो छोड़कर, असम छोड़कर हम बिहार चले जाएँगे। देन फिर मेरे पापा वहाँ से छोड़कर वो वापस बिहार आ गए, इस हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट एंड ओके। वहाँ पे पब्लिक हाई स्कूल हुआ करता था, आज भी है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ओवर देयर। तो मेरे पापा ने मुझे वहाँ एडमिशन कराया एंड वहाँ पे इट वाज़ लाइक वी हैव टू राइट एन एग्ज़ाम्स, तो मैंने एग्ज़ाम्स लिखे, फिर एंड फिर उन्होंने मुझे एडमिशन्स दे दिया, तो आई स्टडीड इन स्कूल। सो स्कूल्स में दैट टाइम आई वाज़ इन 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक पढ़ा मैं ओह! यू एंड स्टडी टिल 10th इन बिहार ओनली? yeah, up to ओके। 10th। एंड उसके बाद बट आई वाज़ वेरी नॉटी एंड मिस्chief, वेरी नॉटी। तो जब You मैं have the acceptance also that you will not. सो जब मैं 8th, 9th एंड 10th, 8th तक तो मैं बहुत अच्छा लड़का था। हुँ। 8th से आई गॉट अ कंपनी ऑफ माय ग्रुप फ्रेंड्स। तो हम ओके। लोग जहाँ रहते थे, माय स्कूल नेम वाज़ पब्लिक हाई स्कूल एंड इट वाज़ इन कुज्जू। तो हम लोगों की ग्रुप थी एक। तो हमारे ग्रुप, एक दूसरी ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो हम लोग आपस में बहुत फाइट करते थे एंड फाइट लाइक एज़ इन लाइक एक्चुअल ना मारना-वारना जो एक्चुअल लड़के जैसे मारपीट करते थे झगड़ते हम हो लोग। हम लोग एक्चुअल मारपीट करते थे, बॉक्सिंग करते थे एंड वे बैक आई वाज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो मैं दौड़ता भी था, फुटबॉल, आई वाज़ अ गोलकीपर ऑफ माय स्कूल। तो या मैं गोलकीपर भी था, सो सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज़ आई वाज़ स्कूल गोलकीपर और हम लोग दूसरे स्कूल से भी खेलते थे एंड आज भी वो स्कूल है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट, दैट एरिया, वेरी गुड स्कूल। तो मैंने वहाँ पे उस ज़माने में हमारे ग्रुपिज़्म हुआ करती थी और बहुत फाइट करते थे हम लोग। तो और उस ज़माने में मुझे वे बैक मुझे याद है, हम लोग चाकू रखते थे अपने पास फाइट के लिए। ओह माय गॉड नो! सो हम लोग इतने नॉटी थे। तो एक बार और उस ज़माने में मुझे वो भी याद है कि उस समय फ़िल्म थिएटर आई थी, गीतांजलि सिनेमा हॉल। तो हम लोग हर फ्राइडे जब भी नई मूवी मूवी रिलीज़ होती थी, आई यूज्ड टू गो देयर। तो हम लोग क्या करते थे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, हम लोगों के पास पैसे तो होते नहीं थे, तो मेरे पापा पैसे दिया करते थे वीकली, सम 50 पैसा, 1 रुपी, 1 एंड हाफ ओह! रुपीज़, वे बैक इन 84, 85। तो हम लोग वो बिकॉज़ दैट मनी वाज़ फॉर माय एक्सपेंसेस, तो वो हुँ। हम
जैसे कुछ खाना हुआ तो पैसा मैं सेव करके रखता था, तो उस पैसे से हम लोग सब दोस्त लोग मिलकर हम लोग फिल्म थिएटर जाते थे। और फिल्म थिएटर में मुझे याद है उस जमाने में पिक्चर आई थी मर्द, अमिताभ बच्चन की, कर्मा, अनिल कपूर की, तो वो सब पिक्चर्स हम लोग देखने के लिए हम लोग जाते थे। तो और हम लोग क्या करते थे कि टिकट के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो हम लोग सबसे फ्रंट जो सामने होता है ना, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाली रो लेते थे और हम लोग वहाँ जाकर टिकट लेकर हम लोग बैठते थे। टिकट के लिए भी बहुत फाइट करते थे हम लोग। हम लोग चाहते थे कि हम लोग ही सबसे पहले जाए, कोई दूसरा नहीं जाए। तो सब पब्लिक को अलग-अलग हो जाते थे। हम लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाते थे, पैसा लेकर हम लोग मुट्ठी बाँध कर पैसा कैश रखते थे, अंदर काउंटर में हाथ डालते थे, उनके सामने खोलते थे, वो पैसा कैलकुलेट करके अंकल टिकट देते थे और हम लोग वापस लेकर सिनेमा हॉल में जाते थे। तो उस ज़माने में मुझे याद है शायद मंथ में 1 फ़िल्म या 2 फ़िल्म आती थी। तो कर्मा, मर्द उस ज़माने में Wait, this हम is लोग when you were in 10th or like 9th या 10th 9th? 9th या तब 10th तब आप मूवीज़ देखने तब जाते थे? तब हम मूवी पर देखने जाते थे। दादा-दादी को पता था कि और आप नहीं, जा उनको कुछ मालूम नहीं था। आई वाज़ वेरी नॉटी। मैं बताया ना फ्रॉम बचपन से मैं बहुत बदमाशी करता एंड था। व्हेन यू सेड लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो आपके ग्रुप में आने में क्या लगता है, लाइक व्हाट वे योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की लाइक यू नो ना कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक सिमिलर माइंडसेट, सिमिलर थिंकिंग, तो ग्रुप आपके ग्रुप में क्या थे या लोग? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मतलब जो जो मेरे साथ फुटबॉल खेलते थे वो ओके, मेरे ग्रुप वाले थे। और ओके, हम ओके, लोग ओके, ज़्यादा करके फुटबॉल और रनिंग में हम लोग बहुत अच्छे थे, तो ये सब ओके, हमारे ओके, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वो लोग ही बने थे। और हम लोग बहुत एक्टिव एंड हाइपर हुआ करते थे। जैसे ओके। हम लोगों को कहीं दौड़ना हुआ, किसी को मारना हुआ, तो हमारे फुटबॉल की जो टीम होती थी 4-5, बिकॉज़ मैं कीपर था, मेरे बैक और मेरे स्ट्राइकर, ये सब तीनों की हम लोग की मैच हुआ करती थी। तो हम लोग तीनों मैच, जैसे मैं कीपर, मेरे बैक, मेरे स्ट्राइकर, तो हम लोग की कोऑर्डिनेशन होती थी फुटबॉल खेलने में। और हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बिकॉज़ हम लोग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। मेरे बैक बहुत अच्छे थे, मेरे स्ट्राइकर बहुत अच्छे थे। तो हम लोग को इशारों में ये बातें करते थे। मैं यहाँ बॉल दूँगा, तुम वहाँ लेके चले जाओ, तुम वहाँ स्ट्राइक करो। बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी। ओह! तो ये हमारे ग्रुप ऑफ, और हम लोग बदमाशी भी बहुत साथ में करते थे। हम लोग 4-5 तो फ्रेंड्स। ऐसा कभी होगा कि आपके किसी को ग्रुप में आना है और आपने आने ही नहीं दिया कि नहीं, दिस येस। इज़ माय ग्रुप, यू कैन नॉट कम इन? ओह या इट वाज़ लाइक व्हाट? दैट। हाँ, हमारे सीरियसली? 5-6 लोग जो हम लोग फुटबॉल खेलते थे, जो रनिंग करते थे, हमारे ग्रुप में किसी को हम लोग एंट्री नहीं करने देते थे। बिकॉज़ वो लोग फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ करते ओह थे माय कि गॉड! हमारे। तो मतलब बेसिकली हुँ। यू हैव टू बी फिजिकली फिट टू बी येस, इन योर येस, ग्रुप। यू आर राइट। व्हाट? तो बिकॉज़ अगर हमको फाइट करना हुआ तो हमारे साथ में वो लोग नहीं नहीं फाइट कर सकते, वो लोग हार जाएँगे। तो हमारे ग्रुप वाले डिसाइड करते थे कि नहीं, हम लोग किसी को नहीं लेंगे, हम लोग 4-5 दोस्त ही साथ में रहेंगे। तो और उस ओह! ज़माने में मुझे याद है, इफ यू रिमेंबर, पिक्चर आती थी शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन की हुँ। दोस्ती। तो हम लोग उस टाइप के दोस्ताना निभाते थे कि हम लोग मरते दम तक हम लोग साथ रहेंगे। उस टाइप की ओह माय फ्रेंडशिप हमारी गॉड! थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग पिक्चर देखने जाते थे, तो हमारे जो हेडमास्टर साहब थे, ही वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही हुँ। वाज़ अ पंजाबी, चड्ढा सर, आज भी मुझे याद है। सो चड्ढा सर, एक बार जब हम लोग पिक्चर में हॉल में घुसे, तो किसी ने रूमर फैलाया कि चड्ढा सर हॉल में आ रहे हैं। तो माय गॉड! और जैसे ही उनको, हम लोगों को मालूम हुआ कि चड्ढा सर आ रहे हैं फिल्म थिएटर में पकड़ने के लिए, कौन-कौन से स्टूडेंट गया हुआ है, हम लोग हॉल से भागे और हम लोग पीछे दीवार से गेट को हम लोग छलांग मारकर बाउंड्री में आ गए, स्कूल के बाउंड्री में। और जब स्कूल के बाउंड्री के साइड में, उस ज़माने में हम लोग के साइड में वी यूज्ड टू हैव वन एग्रीकल्चरल क्लास, जिसमें ओके। हम लोग को पेड़ उगाना, पौधा उगाना होता था। मतलब गार्डनिंग सिखाया जाता था गार्डनिंग आपको? सीखते थे वॉव! हम लोग। तो गार्डनिंग के टाइम पे, जब उस समय दूसरे बैच वाले कर रहे थे, हमारे हुँ। जूनियर्स, तो हम लोग पीछे दीवार फांद कर हम लोग अंदर आए। तो जैसे ही आए, तो हमारे जूनियर्स लोग थे, हम लोग सबको बोला, "श्श, कुछ नहीं बोलना है।" और वो लोग जानते हैं कि हम लोग वहाँ के कीपर एंड हमारे स्कूल लाइक टीम, योर हाँ, होल ग्रुप, ओल्ड येस। ग्रुप, स्कूल टीम प्लेयर है, तो वो लोग सब कुछ नहीं बोले और फिर हम उनके साथ ही जुट गए। और फिर धीरे-धीरे हम लोग वहाँ से क्लास में आ गए। तो आधे हम लोग को मालूम हुआ, माय गॉड! अगर चड्ढा सर को मालूम हुआ तो हम लोग को तो निकाल देंगे स्कूल से, और ये मैटर हमारे पेरेंट्स को जाएगा तो मुझे बहुत मार मिलेगी। तो इसी तरह हम लोग चलते गए। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग आपस में फाइट भी बहुत करते थे और मैं चाकू रखता था। मेरे सब ग्रुप में दैट इज़ सो स्कैरी। आई सो मीन स्कैरी, बिकॉज़ हम लोग बहुत फाइट करते थे। तो एक बार मेरे पापा ने मेरे बैग चेक किया और उनको चाकू मिला। मेरे पापा ओह ने माय गॉड! बहुत मारा। इट वाज़ इन 10th स्टैंडर्ड। मारने के हुँ। बाद भी आपने वापस से चाकू रखा नहीं, है या फिर? उसके पापा ने ओके। सीज़ कर लिया चाकू। और ओह! और हमारे जो ग्रुप थे, पाँचों जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, मेरे पापा ने सबको बुलाया और सबको डैड को बुलाया। और उसके बाद में सबको बताया कि ये पाँचों लड़के लोग बहुत बदमाशी करते हैं, अब इनको यहाँ साथ में नहीं रहना चाहिए।
देन मेरे पापा ने सबको बताया एंड माय फादर और जो अंकल थे उन्होंने बताया कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, तुम लोग अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। उसके बाद इट वाज इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद में हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे इमीडिएटली वहाँ से बैंगलोर भेज दिया। फिर बैंगलोर भेज दिया मैंने। फिर हमारे जो ग्रुप थे, हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स थे, उनके पापा एक हेडमास्टर थे। तो आज भी मुझे ओह! याद है, संजय उनका नाम था। सो ही ऑल्सो, और एक दूसरे जो फ्रेंड था उसका नाम सुरेश था। ही ऑल्सो, उसके ओह! डैडी भी भेज दिए, तो ही वेंट फॉर द माइनिंग स्टडीज। मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे ही वेंट फॉर द मेडिकल फार्मास्यूटिकल स्टडीज। मैं चले गया बैंगलोर फॉर द हायर स्टडीज। तो हम लोग की जो ग्रुप थी, और एक राजेश मेरा फ्रेंड था, ही वेंट इनटू द, टुडे ही इज इन द इनकम टैक्स ऑफिसर। सो ओह! उसको भी हटा दिया। तो हम लोग सब स्कैटर्ड हो गए। और फिर हम लोग लेकिन हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे। पढ़ने में हम लोग अच्छे थे, तो हम लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, एग्ज़ाम्स लिखा, बट उसके बाद हम लोगों ने कोई बदमाशी नहीं की। हम लोगों के ऊपर फुल रिस्ट्रिक्शंस था। हम लोगों को खाने पे रिस्ट्रिक्शंस, उठने का रिस्ट्रिक्शंस, सोने का रिस्ट्रिक्शंस, किससे मिल रहे हैं, उन सब पे रिस्ट्रिक्शंस था। और 4 टू 6 मंथ्स उसके बाद हम लोगों को सबको अलग-अलग भेज दिया गया। मैं बैंगलोर आ गया, कोई मैसूर चले गया, कोई दिल्ली चले गया, कोई नागपुर Everybody चले गया, सब फ्रेंड्स हम लोग everybody स्कैटर्ड हो like गए, just moved apart. एवरीबॉडी। तो Yeah. उसके बाद से जब हम लोग स्कैटर्ड हो गए, तो फिर हम लोगों ने कभी बदमाशी नहीं की। फिर हम लोगों ने पढ़ाई पे फोकस किया। हाँ, बदमाशी भी वो जो ग्रुप की याद आएगी ना, लाइक अगर वो ग्रुप यस, होगा तभी होगा, लाइक वन पर्सन कितना ही बदमाशी कर लेगा। यस। तो यही हुआ। फिर हम लोग, उसके बाद मुझे याद है मैं बैंगलोर आया। तो बैंगलोर में मैं जब एडमिशन्स के लिए मैंने कोशिश की, बिकॉज़ आई वाज़ अ गुड मार्क्स होल्डर इन 10th, अच्छा मार्क्स आए, तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, तो इट वाज़ अ प्राइड इन दैट एरिया। हुँ, तो जब मैं वहाँ से निकला, और जब मैं 10th में के बाद जब मैं 11th में आया, तो मैंने एडमिशन लेने के लिए कोशिश की। तो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लॉट ऑफ कॉलेज ने मुझे रिजेक्ट किया। बोला इन कि ओह, बैंगलोर। इन बैंगलोर, बोला कि ओह नो नो, यू आर फ्रॉम बिहार, आई कैन नॉट गिव यू। जबकि हम लोगों ने रांची में पढ़ाई की, हजारीबाग में पढ़ाई की, वहाँ के स्टडीज बहुत टफ है। एंड हम लोग के समय में 14 पेपर्स हुआ करते थे एग्जाम्स के, ओह! 16 पेपर्स हुआ करते थे। और ओके। हम लोग एक दिन में 2 पेपर्स लिखते थे। टोटल मार्क्स, इफ आई रिमेंबर, इट वाज 1400 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ करता था, टोटल फॉर ऑल द 14 सब्जेक्ट्स। इट वाज टफ, इट वाज नॉट ईजी। तो किसी ने मुझे एडमिशन्स के लिए नहीं दिया। एक साईं बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में मुझे किसी ने बोला कि आप वहाँ पे ट्राई करो। जब वहाँ पे ट्राई किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि सी, योर मार्क्स इज गुड, बट आप बिहार से हो, सो आपको एग्जाम्स लिखना होगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं एग्जाम लिखूंगा। उस समय मैं बहुत छोटा था, 15 ईयर्स, या 10। 16 ईयर्स भी नहीं हुआ होगा मेरा, हुँ, 15 16। सो तो मैंने एग्जाम्स दिए, बिकॉज पढ़ाई में आई वाज सो गुड। तो मैंने एग्जाम्स लिखा, एग्जाम में पास हो गया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं इंटरव्यू में गया, तो वहाँ पे सब इंग्लिश बात कर रहे थे। मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, क्योंकि मैंने तो बिहार हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था। जब मैंने वहाँ पे उनसे बताया कि सर, एक्सक्यूज़ मी, आई एम वेरी सॉरी, मैं इंग्लिश बात नहीं कर सकता हूँ, मैं हिंदी बात करूँ। तो दे वर सो इम्प्रेस्ड दैट आई एम सो ऑनेस्ट टू देम। आई वाज़ वेरी ओह! ऑनेस्ट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसमें से एक पैनल में एक सर थे, जो उन्होंने बॉम्बे में पढ़ाई की थी, ओके। और सो ही न्यू हिंदी। तो उन्होंने बोला कि आप घबराओ मत, आपको मैं आप मुझसे बात करो। ओके, मैं इनको ट्रांसलेट करके, और उनको हिंदी मालूम नहीं थी। नो, इन इंडिया इटसेल्फ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। या तो लैंग्वेजेस उनको डिफरेंस है। उनको मालूम नहीं था हिंदी कैसे बात करना है, और मुझे इंग्लिश मालूम नहीं था, और मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन वाज़ ओनली इंग्लिश। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने उनको पूरा इंटरव्यू में पूरा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आपको मैं एक शर्त पे एडमिशन दूँगा, इफ यू प्रॉमिस यू विल लर्न इंग्लिश। मैं बोला सर, यू गिव मी एन अपॉर्च्युनिटी, 6 मंथ्स में मैं आपको इंग्लिश में भाषण देकर सुनाऊँगा। जब मैंने एक बात किया, तो जो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, वो वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, आई विल साइन द पेपर फॉर यू, नाउ यू अरेंज फॉर द फी। तो फिर आई वाज़ सो हैप्पी, सो इम्प्रेस्ड। मैं सोचा चलो, मेरे 12th में एडमिशन्स हो गए, एंड 11th में आई पास्ड विद गुड मार्क्स। एंड उस समय मैंने बहुत मेहनत की। 6 मंथ्स तक आई स्टार्टेड स्टडीइंग बुक्स, इंग्लिश बुक्स, कम्युनिकेशंस इन इंग्लिश, बिकॉज़ वहाँ कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं मेरे पास। सबको कन्नड़, तेलुगु, वो लोग बात करते थे, किसी को हुँ। हिंदी आती नहीं थी, तमिल बात करते थे। एक ही कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन था, दैट वाज़ ओनली इन इंग्लिश। तो मैंने सबसे इंग्लिश में बात करना चालू किया। फिर मैंने इंग्लिश की बहुत सी बुक्स पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ी। ये सब 6 मंथ्स तक हार्ड वर्क करने के बाद, जब मेरे फर्स्ट ईयर का जब एग्ज़ाम्स हुए और उसमें मेरे रैंक आए
10th. That is 11th standard में. 11th standard में 10th रैंक आए थे क्लास में. Wow. सो इट वाज सो इम्प्रेस्ड. फिर प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया. प्रिंसिपल सर बोले कि वाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. तब उनको यकीन हुआ कि नहीं, एक बिहार का लड़का कुछ कर सकता है. सो देन व्हेन आई वेंट टू 12th में आई वाज अगेन वेरी हार्ड वर्किंग. आई वाज वेरी डेडिकेटेड ऑन द स्पोर्ट्स गेम्स. आई यूज्ड टू डू अ लॉट. उसके बाद में पढ़ाई करता था. जब 12th का रिजल्ट आया था, आई वाज टॉप 3 in my school. Oh my God. And in 1 or 2 subjects I was the highest in Karnataka state. One subject must be Hindi because One subject was obviously Hindi. The second was economics. Oh, economics. I was Okay. 86% marks I secured in that. It was very tough for people to score, but I scored that. तो प्रिंसिपल सर बहुत खुश हुए and then they awarded me with award. They said, oh, आप बहुत मेहनती हो. Because मुझे लगा कि मुझे एक और जुनून था. मुझे मालूम था कि अगर मैं वापस जाता हूँ बिहार, तो मेरा कोई दोस्त है ही नहीं. सब दोस्त निकल गए. और अगर मैं अकेले हो जाता हूँ तो मेरे जो ग्रुप के अपोजिशन वाले मुझे जरूर मारेंगे. अच्छा, वो डर था, वो खौफ था वो कि मुझे डर था कि मैं अकेला हो गया. उस समय तो हम लोग एकदम बहुत लाइक लाइक क्या बोलते हैं, लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, Like a shake, स्कूल का like लाइक शेर जैसे थे. तो हमारे 4-5 और हम लोग सब फुटबॉल खिलाड़ी थे. हम लोग सब फुटबॉल खेलते थे. कबड्डी भी कबड्डी में भी हम लोग बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छा कबड्डी खेलते थे. उस स्कूल के हम लोग कैप्टन हुआ करते थे. उस स्कूल में हम लोग कैप्टन, कबड्डी, फुटबॉल. तो उन्होंने, तो मुझे मालूम था कि मैं वापस तो जा नहीं सकता हूँ. मुझे कुछ करना है तो यही करना है. अगर वापस जाऊंगा तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, और मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. और अगर मेरे अपोजिशन जो दोस्त को जिसको मैंने मारा था स्कूल में, वो लोग मुझे जरूर पूछेंगे, पकड़ेंगे मुझे. तो मैंने सोचा नहीं, मुझे जो करना है यही करना है एंड मुझे डेडिकेटेडली यही रहना है. तो मैंने 11th-12th पास किया, वेरी गुड मार्क्स. फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया बैंगलोर यूनिवर्सिटी में. सो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में जब मैं एडमिशन लिया तो उन्होंने पूछा कि आप 10th कहाँ से पढ़े हो. मैं बोला 10th तो बिहार से. तो फिर बोला बिहार. मैं बोला मैडम डोंट वरी, 10th बिहार से पढ़ा हूँ, 11th-12th मैंने कर्नाटका से ही किया हुआ है. मैंने बैंगलोर से ही हूँ. तो ओके. फिर उन्होंने टेस्ट लिया. उस जमाने में हर क्लासेस में जाने के लिए टेस्ट होता था. तो उन्होंने 11th-12th में टेस्ट लिया. 12th के बाद में ग्रेजुएशन में जाना था. ग्रेजुएशन में उन्होंने टेस्ट लिया. टेस्ट के बाद इंटरव्यू लिया. एंड बाय दैट टाइम आई वाज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो जब मैं इंग्लिश सीख गया, फिर मैं 11th-12th के बाद फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाई की. ग्रेजुएशन आई स्टडीड इन आरवी कॉलेज. आरवी कॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेज इन बैंगलोर. एंड वो भी है अनिल कुंबले. I also went one of your colleges back then in my 10th standard. Yeah. That was your college, right? That was my college. पूरा पहाड़ पे था. Yes. And I met one of your gurus also. Yes, yes. And then yes. उन्होंने संन्यास ले लिया था. And I Right. remember he was on the mountains and you were waiting for him. Right, Yeah, right. yeah. So that was in 12th standard. तो जब एक बार मैं 12th में जब गया था ना, 11th and 12th में, तो बिकॉज लोग बोलते हैं ना बिगड़ा हुआ बच्चा था, तो वो जो मेरे गुरुजी जैसे थे, जो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे करेक्ट किया. उन्होंने मुझे भागवत गीता पढ़ाया, ब्रह्मचर्य का लेसन पढ़ाया. उन्होंने मुझे पूरी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ाई. उन्होंने मुझे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. उन्होंने योगा कर सिखाया मुझे. योगा करना, मॉर्निंग में उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिज्म, भागवत गीता पढ़ाया. उन्होंने ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया. एवरीथिंग उन्होंने मुझे सिखाया. इसीलिए मैं उनको बहुत मानता था. लाइक ही ट्रांसफॉर्म्ड. अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैव बीन टुडे फॉर मी. इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया मुझे. So do you think like the spiritual things have also affected you to become more peace? जैसा आप पहले थे इतना chaotic and hyper. Did spiritual things help you with developing Yes. and shaping yourself back then? Spiritual things made me realize that I'm young. My focus has to be to develop myself. Focus भी होना चाहिए to develop my career. तो स्पिरिचुअल थिंग्स एंड प्लस मेडिटेशन सिखाया मैं उनके साथ. एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आई एवर स्टडीड. एंड आई ऑल्सो एडवाइज योर व्यूअर्स that is in Bangalore. It is in Bangalore. That's Sri Satya Sai Lok Seva Institute in Bangalore. I think if you can Google, you can find out that school. And one of the best schools. And वहाँ के बच्चे लोग ज़्यादा करके यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे टॉप करते हैं. स्टेट लेवल पे सब टॉप करते हैं. एजुकेशंस में, स्पोर्ट्स में. So that's why I was lucky
टू बी इन दैट स्कूल। सो वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मुझे और मैंने बहुत मेहनत की। आई यूज्ड टू आल्सो प्ले कबड्डी वहाँ पे, फिर हम लोग रेसलिंग करते थे, फुटबॉल तो खेलते ही थे और रनिंग रेस भी होता था, हर्डल रेस होता था, वो सब हम करते थे वहाँ। एंड वेरी Hmm. डेडिकेटेड प्रोफेसर्स जो थे वो बहुत डेडिकेटेड हुआ करते थे वहाँ पे। तो वहाँ से पढ़ने के बाद जब मैं 12th कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन में गया, तो वहाँ मुझे सिलेक्शन तो हो गई थी स्कूल में, कॉलेज में। जब कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद उस मेरी प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि एक काम करो, आई सेलेक्ट यू, ओके, नाउ यू हैव टू ब्रिंग योर पेरेंट्स फॉर द फाइनल डिस्कशन एंड सिग्नेचर। Hmm. तो मैंने बोला कि मैम मेरे पेरेंट्स तो यहाँ रहते नहीं है, मेरे पेरेंट्स बिहार में। शी वाज शॉक्ड, यू कम अलोन ऑल द वे। मैं बोला यस मैडम। तो पेपर पे साइन कौन करेगा? मैं बोला मैडम आप मुझे टाइम दीजिए, मैंने अपने पापा को मैंने बताया हुआ है, उनको फ़ोन, उस ज़माने में हमारे फ़ोन हुआ करते थे और अगर Oh, मुझे okay. मम्मी से बात करना होता था तो मैं लंबा सा लेटर लिखा नहीं करता वेट, था। फ़ोन नहीं हुआ करता था। उस समय उस टाइप का हैंड फ़ोन नहीं हुआ करता, ओह! वो घुमाने वाला। घुमाने वाला फ़ोन होता था। ओह! ओके, उस ओके। टाइम पे और हम लोग ट्रंक कॉल लगाते थे। ट्रंक कॉल लगाकर हम लोग बातें करते थे। तो ओह! जब ट्रंक कॉल लगाने के बाद फिर जब मम्मी आती थी लाइन पे तो हम उनसे बात करते फिर थे। व्हाट इज़ अ ट्रॉन्ग कॉल? सो ट्रंक कॉल मीन्स अगर मुझे एसटीडी करना है लाइक आउट ऑफ स्टेट, तो मुझे किसी बूथ से कनेक्शन करना होगा, ओके, ओके, टेलीकम्युनिकेशंस। वो ओके, बूथ मुझे रांची में या हजारीबाग में मेरी मम्मी को कांटेक्ट करेगा वो, और ओके, वहाँ से कनेक्शंस आएगा तो शी विल बी ऑनलाइन। फिर वहाँ से ऑनलाइन होने के बाद फिर आई विल बी होल्डिंग द फोन हियर, तो फिर मैं ऑनलाइन आऊँगा। ओके, तो इट ओके। इट इज़ टू बी वेरी टफ। आज के ज़माने जैसा नहीं है कि आपके हाँ, पास सो यू जस्ट व्हाट्सएप है, कॉल्स। कुछ भी है। उस ज़माने में बहुत तब में तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम सी मेरे पापा आएँगे, मैंने उनको ट्रंक कॉल किया है, मेरे पापा आएँगे, उनको कम से कम ट्रेन से 4 दिन 5 दिन लगेंगे, 3 दिन तो ट्रैवल में लगेगा रांची टू हियर, कम बाय ट्रेन, तो बहुत दूर है। तो आपका तो देन मैडम सेज दैट ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आई सेड मैडम, आई मैं सबके सामने में आई वाज़ टू वेरी पोलाइट कि आप मुझे टाइम दीजिए और आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं करता हूँ। तो फिर जब मैं बाहर आया इंटरव्यू रूम से तो मेरे फ्रेंड के फादर थे। तो फ्रेंड के फादर ने मुझे पहचाना, बोला, "अरे! तुमने तो मेरे लड़के के साथ में 11th-12th किया।" "यस सर।" आपने से बोला, "अंकल।" "ओके। तो यहाँ एडमिशन का हो गया?" "यस अंकल हो गया, लेकिन अभी मुझे पेरेंट्स का या गार्डियन का सिग्नेचर चाहिए।" उससे पेरेंट्स और गार्डियन हुआ करते थे। तो मैंने उनको अंकल को बोला, "अंकल आप गार्डियन में साइन करेंगे?" अंकल हँसने लगे, "तुम्हारे पापा?" मैं बोला, "मेरे पापा तो है नहीं यहाँ पे, वो तो आएँगे, उनको बहुत टाइम लगेगा।" तो उन्होंने बोला, "ठीक है, मैं गार्डियन के कॉलम पे साइन करूँगा, बट बदमाशी मत करना।" मैं बोला, "नहीं, नहीं अंकल, मैं बहुत अच्छा हो गया, अभी बदमाशी नहीं करता हूँ।" तो फिर अंकल ने साइन किया, तो फिर मैं मैडम के पास गया, प्रिंसिपल मैडम। मैं बोला, "मैम मेरे फ्रेंड का डैड है, ही हैज़ साइन्ड द पेपर, इज़ इट ओके? ये चलेगा?" तो बोली, "चलेगा, नो प्रॉब्लम, कॉल योर फ्रेंड्स डैड।" तो बिकॉज़ दे आल्सो वांट टू नो दैट मेरे कौन है, गार्डियन कौन है, या ऑफ लोकल कोर्स। गार्डियन कौन है। हुँ। तो उन्होंने उनको बुलाया और फिर साइन एक्सेप्ट किया। उसके बाद से मैं फिर 12th पढ़ाई सॉरी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन यू ग्रेजुएशन पढ़ाई हाँ। करना मैंने चालू किया। बट लाइक यू वेंट टू बैंगलोर एट अ वेरी यंग एज। या So, and it was always like out of your comfort zone. So, how does it feel to be alone in a very different environment? Pura cultural difference bhi hai because coming from Bihar, it is completely different. And you all survived alone. It was always out of your comfort zone. So, अ, how was it like? इ Like, आपके दिमाग में क्या चलता था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है? Like, all of these changes. And without your friends group also. वो क्या हुआ कि उस समय या वन वाज कल्चरल डिफरेंस, Hmm. सेकंड वन वाज फूड Yeah, हैबिट। food फूड also. हैबिट वाज वेरी डिफरेंट Hmm. बिकॉज यहाँ का खाना अलग है, वहाँ का खाना अलग है। दिस टू थिंग्स एंड द थर्ड थिंग वाज आई डिडंट हैव द फ्रेंड एंड नंबर फोर आई हैव टू सर्वाइव इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन। मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले मेस ढूंढना है, हॉस्टल ढूंढना है, खाना है, मुझे खुद कपड़े साफ करना, एवरीथिंग आई हैव टू डू माई ओन। तो मेरे दिमाग में और मेरे दिल में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। अगर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स है कोई ही है नहीं हो, नहीं है। कोई फ्रेंड्स नहीं है, वापस Mhm. नहीं जा सकता हूँ। अगर वापस गया तो मुझे फिर वही हाई स्कूल का याद आता था। हाँ, वो मेरे सब। मेरे फ्रेंड्स लोग ज़रूर मुझे पकड़ेंगे क्योंकि कोई था ही नहीं मेरे लिए, तो मुझे कुछ वापस जाने का कोई चांस ही नहीं था। मुझे जो भी करना है मुझे आगे करना है, जो भी करना है मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके मैंने वहाँ पे आगे बढ़ते गया एंड फिर फर्स्ट ईयर पास हुआ, सेकंड ईयर पास हुआ, थर्ड ईयर पास हुआ ग्रेजुएशंस एंड
marks was okay. I mean, not that good in marks because हमारे subjects was very tough. डैड And इतना ऑनेस्ट नहीं होना है तो बट या मुझे लैंग्वेज भी सीखा था मैंने, नया नया इंग्लिश सीखा था, मुझे लैंग्वेज भी प्रॉब्लम होते थे कभी कभी, बट देन आई थॉट मुझे कुछ करना है, मुझे वापस नहीं जाना है। एंड बैंगलोर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। आई कैन एडवाइज यू दैट आपके जो भी व्यूअर्स हैं, यू शुड विजिट I mean, बैंगलोर। I want to इज visit yeah, Bangalore. it's a very lovely city, very beautiful, and the people are very nice. Culturally, it is very well connected. And now it is an IT hub. Like Yeah. it has grown drastically, and I think like every other person is a CEO, and this is what I've heard on Instagram. Yes. So Right. काफी develop हो चुका है Right. like So Bangalore. everybody, and it is very lovely place, very lovely place. Everybody should visit Bangalore. It's very beautiful. And 12th also I passed out from that area. In graduation also I passed out from that area. उसके बाद क्या हुआ कि Did you make friends in Oh, yeah. graduation Yeah, also? yeah. Like I how met- was your experience with friends during that time? Yeah, in Bangalore? lot of friends I met during my graduation. Lot of friends. उसमें से हमारे कुछ friends तो अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी के टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, Okay. किसी का फैक्ट्रीज हैं, किसी का प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं वहाँ बैंगलोर में, और कभी भी मैं जाता हूँ तो मैं सबको कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से मिलूँ, और मैं सबको डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ। तो हम लोग बैठते हैं, डिनर खाते हैं। इट वाज लवली। Lovely, आई मीन yeah. बैंगलोर इज अ लवली सिटी। What did you learn from your friends in Bangalore? Because जो भी आपने friends बनाए, you chose to be friends with them, or like you chose to give your time and they chose to be with you. What Like in happened, मैंने graduation, उनको so- बहुत टाइम दिया बिकॉज वो लोग तो वहाँ के ही थे। आई वाज ओनली आउटसाइडर्स। So like they helped you. दे हेल्प मी बिकॉज उनको लगा कि मैं बाहर से आया हूँ कुछ करने के लिए, तो दे टू बी ऑलवेज वेरी काइंड टू मी, ऑलवेज वेरी काइंड टू मी। और दिवाली, होली, दशहरा, आई कैनॉट गो बैक टू बिहार एनी मोर, तो मैं उनके साथ ही सेलिब्रेट करता था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे बिकेम माई लाइक अ फैमिली मेम्बर। तो उनकी मम्मी बुलाया करती थी दिवाली में, दशहरा में, होली में, हमेशा बुलाया करती थी, तुम आ जाओ बेटा, घर पे आ जाओ, घर का खाना खाना, बिकॉज तुम अकेले रहते हो। एंड आई टू बी वेरी क्लोज टू देयर फैमिलीज, वेरी क्लोज टू देयर फैमिलीज। आज भी वो हमारे दोस्त हैं, और जब भी मैं बैंगलोर जाता हूँ आज भी मैं उनके साथ में Yeah. मैं खाना खाता हूँ, उनके साथ गप्पे मारता हूँ, कॉफी पीता हूँ, आज भी मैं उनके साथ रहता हूँ। In life, like you find a lot of friends, and life में इतने सारे friends मिल जाते हैं कि it makes like your friends make your life easier. And मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया, लाइक मुंबई में भी हमारा कोई फैमिली ऐसा नहीं है, मेरे से फ्रेंड्स ही, एंड आई थिंक कि दे हैव मेड माई लाइफ ईजियर, दे हैव हेल्प्ड मी ऑलवेज, एंड आई नो आई कैन रिलाई ऑन देम, एंड like friends genuinely shape you in a certain way, and it feels so good to be natural and just be yourself with friends. I have always seen whatever I have grown until today, मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया है, बिकॉज मेरा कोई था ही नहीं, मेरे पेरेंट्स यहाँ थे नहीं, एंड मुझे आगे बढ़ना है, तो फ्रेंड्स वेर द ओनली वन दे यूज्ड टू एडवाइज मी। तो वो लोग मुझे एडवाइस करते थे, वो लोग मुझे गाइड करते थे, उनके साथ में पढ़ाई करता था, उनके साथ में समझता था, जब मैं नहीं समझ पाता था जो सब्जेक्ट्स उनसे मैं पूछता था। तो मैंने लाइफ में भी देखा है कि इफ़ यू आर हम्बल, डेडिकेटेड, सिंसियर, पीपल विल हेल्प यू। Yeah, God will always find a way to help you. जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो है ही, Yeah. जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर हम लोग जब देखते थे तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है खुदा यार। है। तो कोई नहीं है तो एटलीस्ट समबडी इज देयर टू सपोर्ट यू। Yeah. तो मेरे बैंगलोर के फ्रेंड्स आज भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अभी भी वो, मैं जहाँ भी फॉरेन जाता हूँ या रहता हूँ, दे कम देयर टू मीट मी। जब मैं इंडिया आता हूँ तो मैं उनसे मिलता हूँ। सो ऑल दैट keeps going, बट या स्टिल दे आर माई द ओल्ड बडीज, ओल्ड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बट मोस्ट ऑफ देम आर इन बिजनेस, वो लोग Oh, सब okay. बिजनेस में गए हैं, वो लोग सब बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल क्वाइट सक्सेसफुल, एंड आई फील प्राउड when the friends are successful, you also feel proud that oh you are also successful with them. So ये है, और हम हमेशा देखते हैं कि फ्रेंड्स अगर सक्सेसफुल होगा तो ऑटोमेटिकली you will also get success because Yeah. they will try to push you up to get success. Yeah. So ये मैंने देखा है लाइफ में, and that is how from Bangalore I studied and then did my graduation. उस समय मैं बैंगलोर से मैं सोचा कि अब मैं एमबीए करूँगा बिकॉज मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। उस ज़माने में एमबीए के लिए बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, एंड उस समय ओनली 28-29 सीट्स हुआ करती थी। तो मैंने एग्जाम्स लिखे बट आई वाज नॉट दैट सक्सेसफुल बिकॉज इट इज़ वेरी टफ। सब लोग कम्पीट कर रहे थे उस 25-30 सीट्स But के लिए। how did you come to know that you have interest in marketing? Oh. Like because अभी भी नहीं पता मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। I mean, I love shooting and all of that, but
How did you have that thing कि yeah, I'm interested in marketing? Like, how did you find yourself back क्या then? हुआ कि back then in graduation I used to be very close to the teachers and professors, very Hmm. close. Hmm. तो जब मैं उनके साथ में था तो आई यूज्ड टू बी कम्युनिकेटिंग अ लॉट। मैं बहुत से एक्टिविटीज में उनमें पार्टिसिपेट करता था। आई यूज्ड टू बी गोइंग टू द मेनी कल्चरल एक्टिविटीज, प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम, ड्रामा प्रोग्राम एंड इलोक्यूशंस, कम्युनिकेशंस। मैं इस सब बहुत पार्टिसिपेट करता था। सो वंस Oh. व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटिंग तो मेरे सर ने बताया कि यू आर वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द मार्केटिंग। तो मुझे अकाउंटिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था बिकॉज़ आई वाज़ नॉट दैट गुड एट अकाउंटिंग। सो Too much of अ, math. टू मच ऑफ मैथ्स, टू मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अकाउंटिंग तभी भी मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट में मैंने एडमिशन लिया आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने Oh, okay. सोचा कि अगर मुझे बीकॉम में सीट्स नहीं मिलता है तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूँगा। बट दैट वाज़ नॉट विथ माय चॉइस, इट वाज़ अ कंपल्सन बिकॉज़ मुझे एमबीए में सीट नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इफ आई डोंट गेट एमबीए तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूँ। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट में मैंने एडमिशन ले लिया था। Mhm. फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया, दैट्स व्हाई द फ्रेंड्स काउंट्स अ लॉट। यू नो, उनसे मैं बात कर रहा था तो वो लोग बता रहे हैं कि देखो एक काम करो, तुम चले जाओ महाराष्ट्र, बॉम्बे में बहुत से कॉलेजेस हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई देयर? Oh, your friends told you that. फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी। Ah, your friends एंड advised you देन that. वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट, जो हमारे साथ जो 12th में पढ़ाई किए थे, जो ग्रेजुएशन में थे, उन्होंने मुझे बताया कि अपना एक फ्रेंड है बॉम्बे में, वो थाने में रहता है, व्हाई डोंट यू कॉन्टैक्ट हिम? तो मेरे पास तो नंबर नहीं था, उसका एड्रेस था। मुझे वे बैक मुझे याद है, हम लोग जब जब हम लोग डिपार्ट करते थे, कॉलेज से छोड़कर जाते थे, तो हम लोग एक दूसरे का एड्रेस लेते थे। एंड एक बुक हुआ करती थी, उसमें एक विथ सम अप्रिसिएशन कोट एंड सम एड्रेसेस टू बी रिटन ओवर देयर, वो हम लोग संभाल कर रखते थे। तो मैंने वो बुक देखा, उसमें उसका एड्रेस था थाने का। तो मैंने उसको लेटर लिखा कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ एंड अगर आप मुझे आने के लिए परमिशन दोगे तो मैं आपके घर पे 2-4 दिन रुकूँगा और फिर वहाँ से मैं कोशिश करूँगा, मुझे एमबीए करना है। तो उसने मुझे एक लेटर भेजा। उस ज़माने में लेटर एक 15 दिन के बाद लेटर आता था, 15 दिन के बाद लेटर पहुँचता था। तो 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद में उसका लेटर मिला मुझे कि ओके, तुम आ जाओ, मेरा घर का एड्रेस ये है, तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो मैंने वहाँ से ट्रेन की टिकट ली और मैं बॉम्बे आया। जब मैं बॉम्बे आया तो मैं रात को उतरा थाने में, थाने से मैंने ऑटो रिक्शा लिया एंड उस ज़माने में मैंने देखा है, अभी तो ऑटो रिक्शे का मीटर जो है ना बहुत अलग है। उस ज़माने में 1 लिखा होता था, 1, 2 जैसे 1 का मतलब ₹5, 2 का मतलब Oh. ₹10 ऐसे सिस्टम होता था पहले ज़माने में। आजकल के जैसा मीटर नहीं कि 23, 24, 25, 26 रुपीज़ Hmm. ऐसा नहीं था। 1 का मतलब पा तो जब मैं ऑटो रिक्शा पे बैठा और जब अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहा था तो मीटर 1 ही दिखा रहा था। तो मैं सोचा कि यार, ये तो बहुत सस्ता बॉम्बे है। फिर मीटर 2 आया। मैं सोचा कि ये तो बहुत सस्ता है यार, ₹2 में हम उसके घर पहुँच रहे हैं। 3 आया, ₹3 में घर पहुँच सकते हैं। बाद में जब उसको बिल पेमेंट किया तो बताया सर, तो कार्ड निकाल के दिखाया, सर 3 का मतलब होता है ₹15 या ₹16। तो मुझे लगा ओह! आई सी, इसका मतलब 1 का मतलब 5 होता है, 2 का मतलब 10 होता है। तो देन मुझे लगा कि ओह! अच्छा, यहाँ का सिस्टम अलग है। अब तो सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। आई थिंक Hmm. इन योर टाइम इज़ ऑल चेंज, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत अलग हुआ करता था। तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे गया। जब मैं फ्रेंड के घर पे गया Hmm. तो आई हैड माय डिनर विथ हिम इन द नाइट। फिर मैं वहाँ रुका। सेकंड डे मैंने उसको बताया कि मुझे कुछ ट्राई करना है यहाँ पे और इट्स नॉट नेसेसरी दैट मैं बॉम्बे में रहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं बॉम्बे में मिलकर कोशिश करूँ। आई मीन इट्स नॉट गुड दैट मैं ट्राई नहीं किया। एक एक और होता है लाइफ में, ट्राई योरसेल्फ। अगर आप डोंट ट्राई, यू विल रिपेंट लेटर। तो ऐसा तो दिल में रहेगा कि मैंने ट्राई किया है एंड आई डिड नॉट सक्सीड, लेकिन मैंने ट्राई किया है एंड आई गॉट सक्सीडेड, दैट इज द बेस्ट ऑफ द फीलिंग्स इन लाइफ। Hmm. तो मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे में आके मैं ट्राई करता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी करेजियस, यू नो, वेरी साहसी लड़का था ना उस टाइप का। मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, मुझे ही सब कुछ करना है। मुझे साहसी भी बनना है, करेजियस भी बनना है, सबको नमस्कार भी करना है, सबको गुड मॉर्निंग भी बोलना है, सब मुझे करना है बिकॉज़ मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं वापस जा ही नहीं सकता हूँ। मतलब एक ही रूट है, मुझे आगे बढ़ना है। दैट इज़ व्हाट वाज़ इन माय ब्रेन, मुझे आगे ही बढ़ना है। एंड अगर सब लोग ये अगर दिमाग में डाल लें, मुझे आगे ही बढ़ना है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे ही वन बाय वन स्टेप हम बढ़ते जाएँगे एंड गॉड इज़ ग्रेट, ही विल फाइंड द वे आउट। तो मैं वहाँ पे उसके घर पे बात किया कि मुझे यहाँ पे ट्राई करना है, बोला ट्राई करो। तो
2, 4, 5 दिन वहाँ उसके पास रहा। उसके बाद में बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो स्टडीइंग, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, उसको उसके पेरेंट्स मे बी दे मे नॉट लाइक, और वो बोला कि हाउ लॉन्ग यू विल ट्राई? तो मैं बोला या मैं भी सोच रहा हूँ कि आई वांट टू फाइंड द प्लेस टू स्टे। अब बॉम्बे में रहूँगा कहाँ? तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहता था। एक न्यूज़पेपर में देखा मैंने कि अ, स्क्रीन या मिड डे आता था उस ज़माने में, आई थिंक सामना आता था मिड डे, कि लड़का एंड लड़की चाहिए फॉर आर्टिस्ट, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड। तो जैसे ही मैंने देखा एकोमोडेशन प्रोवाइडेड, तो मैं सोचा कि व्हाई डोंट आई गो एंड ट्राई देयर। तो मैं उस एड्रेस पे ढूँढ के मैं जुह गया। वहाँ पे गया तो वो लोग बोलते हैं कि आपको एकोमोडेशन तो मिलेगा, आपको ट्रेनिंग करना होगा, आपको एक्टिंग सीखना होगा। मैं बोला मैं तो एक्चुअल मेरा मकसद है मेरा यहाँ रहना, कि मैं एक एकोमोडेशन मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप 1 महीने के या 3 महीने का आप ट्रेनिंग करो, आप स्टूडियो में शूटिंग का। और मैं बोला 3 महीने का नहीं, 1 महीने का कोर्स होता है? बोलता होता है, 1 महीने का भी होता है, आपको पैसा देना पड़ेगा। उस समय कुछ पैसे लेते थे, 6000 8000 रुपीज़ कुछ लेते थे। आप तो आपको पैसा देना होगा, लेकिन आपको रहने के लिए एकोमोडेशन हम लोग फिक्स करेंगे, आप वहाँ रहना और वो आपको पे करना है। तो मैं बोला ठीक है, चलेगा। Wait, but for 6,000, 8,000 for what? फॉर द ट्रेनिंग, Acha, फॉर द फॉर द ट्रेनिंग इन द इंस्टीट्यूट्स, for what? For फॉर द acting. फॉर द एक्टिंग। Oh, okay. For the acting, तो for the acting and for like acting, facial expressions, मतलब वो लोग सिखाते थे कि अगर आपको इस लाइन में जाना है तो मेरा Okay, मेन okay. मकसद था इस लाइन पे तो जाना नहीं। मेरा मेन मकसद था कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे कुछ ढूंढना है, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड एक्टर, आई एम नॉट अ हैंडसम बॉय। और जिस इंस्टीट्यूट में मैं गया था, आई थिंक इट वाज मेहुल कपूर, आशा चंद्रा, उस जमाने बहुत सब नाम हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा, सब लंबे-लंबे लड़के लोग, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से, लंबे-लंबे सब हैंडसम लड़के, लड़कियाँ, उनके सामने मैं क्या टिकूँगा? तो मैं बोला, यार इनके सामने मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं इन लोगों के सामने। इनको तो सबसे पहले एक्टिंग मिलेगा, और मुझे अगर मैं दिमाग बनाता भी उनके साथ काम करने के लिए, तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिकॉज़ मैं अगर बॉम्बे में रहता हूँ तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैं रहूँगा कहाँ? हू विल स्पॉन्सर मी? मेरे फादर इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, मुझे पैसा कौन स्पॉन्सर करेगा? तो मैं एस-एस करते गया, मैं बोला ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा। बस मैं सबको नमस्कार करके मैं बोला एस-एस ज़रूर। इसीलिए मैंने लाइफ में सीखा है कि या नमस्कार में बहुत चमत्कार है। यू शुड ऑलवेज़ फोल्ड योर हैंड, गॉड विल ब्लेस यू। ऑलवेज़ फोल्ड हैंड। सो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दिया है माटुंगा रोड में, रेलवे कॉलोनी में। तो मैं रेलवे कॉलोनी में रुका, तो But for रेल the accommodation, you had to pay I have to 6,000 pay. I pay separately, Okay. monthly. Six Monthly. thousand was the fee for them. Monthly fee for 3 months is 18,000 or 20,000. वो तो 1 मंथ का मुझे फी पे करना था, और मुझे एकोमोडेशन वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे तो मुझे मालूम होगा मुझे रहना कहाँ है। तो उन्होंने रेलवे क्वार्टर्स माटुंगा, वो तो नज़दीक ही था माटुंगा। देन यू गो टू दादर और यू गो टू बांद्रा, सांता क्रूज़, Yeah, वो सब main नज़दीक area, उसी yeah. नियर एरिया में उन्होंने एकोमोडेशन प्रोवाइड किया। तो आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर। तो फिर मैंने देखा, तो जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट लोग भी रहते थे। कुछ लड़के लोग थे जो कि ट्राई करते थे। तो मैंने उनको उनके साथ में मैं गया भी। जब उनकी शूटिंग होती थी तो मैं जाता था उनके साथ में देखने के लिए। तो उसमें देखा मैंने बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स है, बहुत से लोग हैं। और जब मैं ट्रेनिंग में जब गया था 1 मंथ ट्रेनिंग, तो लोग मुझे बताते थे कि एवरीडे बॉम्बे में 10,000 लोग आते हैं। उसमें से 10% लोग तो केवल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए आते हैं। बाकी लोग तो जॉब ढूँढने के लिए आते हैं। तो बाकी लोग दूसरी लक ट्राई करने के लिए आते हैं, और उन्होंने बताया कि कुछ आपके जैसे लोग भी आते हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, मालूम नहीं क्या करना चाहते हैं। But कुछ तो करना चाहते हैं। कुछ तो करना चाहते हैं, बिकॉज़ आई कैन नॉट गो बैक, हाँ। दैट वाज़ द वन थिंग। तो मैंने सोचा ठीक है, उनके साथ में ट्रेनिंग में गया, एक जस्ट थोड़ा-सा सीखा, बट मेरा मेन मकसद था कि मुझे एमबीए करना है। तो मैंने सब कॉलेजेस ढूँढे, ट्रेनिंग तो केवल 2-3 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, 4 घंटे की ट्रेनिंग। बाद में टाइम हो गया तो फिर मैंने ग्रेजुएशन तो किया ही था मैंने, फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया, फिर मैंने एमबीए के लिए ट्राई की। तो वो आपने था एलएलबी का एडमिशन ले लिया था? एडमिशन ले लिया था। मैं आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैं सोचा कि मेरे मार्क्स पे एलएलबी में एडमिशन मिल रहा है, तो मैं रूपारेल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी क्लोज टू माय रेसिडेंस। हुँ। तो मैं
कॉलेज में आ गया, जब कॉलेज में आ गया तो मुझे हॉस्टल्स की भी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो मैंने हॉस्टल्स में रूपारेल कॉलेज में आ गया। जब एक बार जब मुझे विथिन 1 मंथ, तब तक तो मेरी ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गई थी, उसके बाद मैंने एक्सटेंड नहीं किया। जब मैं रूपारेल कॉलेज में आ गया, जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, तो मैं हॉस्टल में आ गया, तो मुझे हॉस्टल में मुझे सब फैसिलिटीज़ मिलने लगी। फिर मुझे कॉलेज आना, लाइब्रेरी में बैठना, फिर एमबीए के लिए प्रिपेयर करना, तो फिर मैंने एमबीए के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। इट वाज़ इन 1993 जब हुँ। मैं एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस समय, उसी समय मार्च या एमबीए के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, उस समय मुझे याद है कि आई वाज़ स्टडीइंग प्रिपेयर करने के लिए मुझे जीमैट की बुक पढ़ाई करता था एंड लॉट ऑफ आर्टिकल्स पढ़ाई करता था, इंग्लिश हुँ, न्यूज़पेपर पढ़ता था हुँ। बिकॉज़ एमबीए में एडमिशन के लिए मुझे प्रिपेयर करना था। तो उस कोर्स में कुछ लिखा हुआ था अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। ओह! बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज द शेयर्स, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज इक्विटी, वो उसके बारे में भी क्वेश्चंस होते थे। और उस जमाने में क्वेश्चन जो होते थे एमबीए एंट्रेंस के लिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वन वन मार्क्स के होते थे। लाइक तो जब मल्टीपल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन्स ना? चॉइस होते थे, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बॉम्बे में ही है, व्हाई डोंट आई गो वन डे। तो उस दिन अ, मैं उस दिन मैं सोचा कि मैं आई वाज इन लॉ कॉलेज, तो मैं मॉर्निंग की लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर ली थी। जब क्लासेस हो गए थे मेरे, उसके बाद मैं खाना खाया हॉस्टल में, फिर मैं अपने रूम में आ गया। जब मैं रूम में आया तो मैं सोचा कि मैं जाऊँगा, वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। तो मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मैं उठ नहीं पाया। 4 बजे उठा बिकॉज़ आई वाज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, सो हो सकता है मैंने एक्सरसाइज़ स्पोर्ट्स हुँ। बहुत किया था, रनिंग किया था, तो मैं सो गया। जब सोकर उठा तो 5 बज गए। 5 बज गए तो मैंने देखा ये तो 5 बज गए, अब मुझे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना है। मैं जैसे ही ड्रेस पहना, रेडी हुआ और जैसे निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए कोशिश किया रूपारेल कॉलेज से, मुझे वॉचमैन ने रोक दिया। मत जाओ तुम लोग, आज बम ब्लास्ट हुआ है बॉम्बे में। ओह माय व्हाट? गॉड! एंड 1993 मार्च में अ, यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। इट वाज़ इन बॉम्बे इट स्टॉक वाज़ इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज। ओनली? उसके बाद में जब फिर बाद में न्यूज़ आई, रिपोर्ट आई, तब फिर मालूम हुआ कि इट वाज़ इन एवरीवेयर। इट वाज़ इन ओह! 10 टू 11 प्लेसेस इन मुंबई। आई वाज़ सो लकीली सेव्ड, थैंक गॉड आई डिडन्ट गो दैट डे। मैं उस दिन गया ही नहीं। थैंक आई गॉड, डोंट नो क्या थैंक हुआ, गॉड। मैं सो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई फ़ेल्ट स्लीपी एंड आई स्लेप्ट। आई कुड नॉट गेट अप फॉर 2 टू 3 आवर्स। But that, like, this has happened twice. Once even like the Taj के Yeah, टाइम पे भी that happened. You had a meeting over I there had a and वो meeting. biggest जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ Yeah, था, and I remember मैं और मम्मी ऐसे रो रहे थे, and सामने वाले सब नेबर्स घर पे आ गए थे, and I was yeah, so young, and तभी फ़ोन भी नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड आई जस्ट सॉ लाइक मम्मा वाज़ जस्ट प्रेइंग, 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 एंड जो हमारी सामने वाली जो दादी थी वो भी आई थी, yeah. एंड वो भी शी वाज़ जस्ट प्रेइंग कि क्या हो गया, क्या होएगा, कि कब आएँगे, कब आएँगे, एंड देन उस टाइम पे आप चर्चगेट में थे, एंड देन चर्चगेट में आपको पूरा yeah, से लाइक थोड़ा बहुत वॉक भी लाइक वॉक करना yeah, पड़ता yeah, है yeah, बिकॉज़ सब yeah, ट्रेन्स ही बंद हो गया yeah. था। It was 26/11 only and we Yeah. were so scared. So I mean, I God will has always protected always us. protected us. Yeah. So there is one thing which that was one thing in 1993. उसके बाद में I was so upset, मैं बोला oh my God. एंड फिर मैं सोचा कि मैं वापस बैंगलोर चले जाऊँ, फिर मैं सोचा कि नहीं, यहाँ मुझे आया हूँ तो एक बार एग्जाम लिख लेता हूँ। तो फिर मैंने एग्जाम लिखा एंड उस समय एग्जाम जो होते थे एमबीए के लिए, लाइक देयर वाज लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बजाज था, सिडनेम था, एसपी जैन था, केजे सोमा इंस्टीट्यूट ऑफ हुँ। मैनेजमेंट स्टडीज था, बहुत से मतलब ये सब पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने सिडनी में भी एग्ज़ाम्स दिए थे, बजाज का तो यूनिवर्सिटी का था वो, एंड देन केजे सोमैया का भी था। तो मैंने एक-एक इंस्टीट्यूट से मैंने फॉर्म भरे थे। तो मुझे लकीली फॉर्च्यूनेटली मुझे सिडनी में भी सीट मिल गया एंड केजे सोमैया में सीट मिल गया। तो जब ओह! सीट मिल गया मुझे, तो मैंने एमबीए 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। फिर मैंने सो हैप्पी दैट चलो थैंक्स गॉड एट लीस्ट आई विल बी एबल टू डू माय एमबीए। तो फिर मैं केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च में मैंने पढ़ाई की 93, 95 बैच। सो So wait, you did LLB and MBA like हाँ, simultaneously? नहीं तो फिर मैंने एलएलबी तो फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने स्टॉप किया। फिर मैंने एमबीए कंप्लीट की 2 साल, उसके बाद फिर मैंने एलएलबी सेकंड एंड थर्ड ईयर कंप्लीट किया। So ओह! I continued after my job also. So once when I was in MBA, so it's very interesting that 1995, 93-95 में मैंने MBA KJ Soma Institute of Management Studies and Research. It is one of the very premier Mm. institutes in Mumbai, And it and is it's a very good for engineering very good also. for engineering also, medical also. It's very good. I mean, if your viewer wants to know, and they can try. It's very good. I mean, हुँ। life में try करते रहो. We don't know अपना डेस्टिनी कहाँ लिखा है। ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तो मैंने ट्राई किया, मुझे मिल गया एंड जब मैंने एमबीए में जब मिला था, आई वाज़ सो प्राउड।
मैं सोचा कि यार आई एम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स एंड फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया एंड उस समय भी मैं फुटबॉल खेलता था। आई यूज्ड टू बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स एज अ कीपर। आई यूज्ड टू प्ले। और फिर सेकंड ईयर में पास हुआ एंड बिफोर सेकंड ईयर देन वी हैड अ कैंपस रिक्रूटमेंट। तो मुझे 3 जगह जॉब मिले थे मुझे। वन इज़ JL Morrison, Vidit Metallics, and agricultural commodities. Orient Syntex. They had a company called Orient Agro. तो आई गॉट इट इनटू दिस 3 कंपनी। तो फिर मैंने पापा से पूछा कि मैं किस में जाऊँ? पापा जी बोले कि देखो बेटा, इट्स वेरी सिंपल, खाने-पीने में जाओ, तुम जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो कंपनी चलते रहेगी। बाकी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी मालूम नहीं है, बट एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी विल ऑलवेज ड्राइव इन। तो मैंने उस कंपनी में जॉइन किया, 2 कंपनीज़ को मैंने छोड़ दिया, इसमें जॉइन किया। जब इसमें जॉइन किया सो I started working and then first year I was on the training and within second year the company sent to me they sent me to Dubai Hmm. just for the market research and customer development. I was mainly into the sales because मैंने marketing MBA किया था। I was in the sales. So जब मैं वहाँ गया तो I was surprised, astonished to see Dubai talking about 96. Oh. उस ज़माने में भी या 96 उस ज़माने में भी दुबई वाज़ आई मीन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाज़ डेवलपिंग, उनके जो सिस्टम जो थे इट वाज़ सो लवली सिस्टम। मैंने सोचा कि But वो like back then, they did not उसमें respect Indians, no much. Because back then it was like कि dogs are not allowed वाला face था ना, like this is what I've इट वाज़ heard. बिफोर दैट Okay. हाँ, हमारे टाइम पे इट वाज़ स्टिल ओके, इट वाज़ गेटिंग बेटर। एंड एक टाइम था जबकि मिडल ईस्ट में 1970s में इंडियन करेंसी चलती थी। इंडियन Oh. करेंसी वाज़ सो स्ट्रांग And दैट टाइम। now तो in Dubai, like Hindi is the main language Yeah. also, like one of the main Yeah, one of languages. the main. Yeah, Hindi and English. If you Yeah. go to Dubai, is Hindi and English is the main language. That's all. And उसके बाद जब मैं दुबई से वापस आया तो फिर आई वाज वर्किंग हियर एंड देन मेरे कंपनी ने वहाँ पोस्ट कर दिया था कि यू मेक अ सेल्स इन दुबई। उस समय आई रिमेंबर रशिया वाज ब्रोक into Oh. many countries, so there was a big demand coming from a lot of Kazakhstan, Armenia, Georgia, lot of Russia, Ukraine, इन सब से बहुत डिमांड आते थे। तो आई वाज पोस्टेड ओवर देयर। उस समय मुझे याद है दुबई वाज रियली इट्स लवली Mm. एंड टुडे दुबई इज अमेजिंग One of अमेजिंग the best वन ऑफ द cities. बेस्ट एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। आई टेल योर व्यूअर दैट अगर कभी मौका मिले तो आप चले जाओ, जाके देख कर आओ। I mean, like, but हाँ, Papa, Dubai is known for luxury and लग्जरी नाउ इट इज लग्जरी like people spend lakhs of rupees राइट। on experiences and luxury, and Dubai has a huge standard. ह्यूज एंड दुबई आज के ज़माने में ऐसा है कि 1 नाइट के लिए यू हैव टू स्पेंड 20 लाख रुपीस पर नाइट फॉर द होटल एटलांटिस, ऐसा भी है। Nice. तो 20 लाख रुपया 1 नाइट का भी लगता है और आपको आप 2000 रुपए में भी आप रह सकते हो। इफ यू गो टू बर दुबई, दियरा, यू नो द ओल्ड सिटी, आप वहाँ पे 2000-3000 रुपए में भी आपको रूम मिलेगा। एट द सेम टाइम 20 लाख रुपए में भी 1 नाइट का रूम मिलता है। सो दुबई हैज़ मेड ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। ये मैंने पहली बार मैंने लाइफ में देखा है फॉर सो मेनी इयर्स। दुबई हैज़ मेड अ हाई प्रीमियम सेगमेंट्स, वेरी प्रीमियम। उनका लोअर सेगमेंट्स भी है, जहाँ पे लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़ वो भी रहते हैं। Hindus, like everywhere. Like, Indians also, but Indians are in a better position than other countries. okay. Other Pakistanis and Bangladeshis, Yeah, I mean, Burj Afghanistanis, Khalifa is owned by a lot of lot of top Indian in the Burj Bollywood Khalifa only. में अगर आप देखोगे तो more than 65% of the flats, apartments are owned by Indians. Yeah. तो उन्होंने पूरा कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया and Indians are in a very high position now. And Shah Rukh Khan is the ambassador of Dubai. Ambassadors Like, there. he represents Dubai. Right. They respect him a lot. Yeah, And Lord. after this Shah Rukh Khan coming in, they have transformed the Indian images in the world. Yeah. ये भी मैंने देखा है कि जो हमारे टाइम पे था, आज भी मैं दुबई जाता हूँ, बट दिस डिफरेंट। नाउ दे हैव अ इमेज फॉर द इंडियंस नाउ, और इंडियंस वो लोग बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट ओन करते हैं, होटल्स ओन करते हैं। दे आर वेरी And tax-free country है तो and it's a tax you free get a lot country. of benefits. You get also. your iPhone cheaper in Dubai than Mumbai. So a tax free country here, but now they developed a lot. So way back after that, I was started working, and then when I started making some money, तो मैं सोचा कि बॉम्बे में मैं रहता हूँ, I was staying in the paying guest. तो मैंने सोचा कि since I'm staying in a paying guest in Bombay in Thakur complex, I was staying there. तो मैं सोचा कि why don't I buy one small place so that मेरा एक
फुट होल्ड हो जाएगा बॉम्बे Yeah, so सिटी it में। is basically like मुंबई में घर होना सबका सपना होता है. सपना होता And है, या if you're in Mumbai, it's either you're like an actress or Bollywood, or या like you buy a property or you build a business. Like Mumbai is blessed. Like ब्लेस्ड, या Mumbai is a blessed city. मुंबई इज अ ब्लेस्ड सिटी, यू आर Uh, राइट। एंड जो भी बॉम्बे आए हुए हैं, दे हैव नेवर गॉन बैक, ये yeah. मैंने देखा है। ऑल्सो आई थिंक कि मुंबई इतना ब्लेस्ड है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोएगा. यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है. एंड या आई थिंक कि मुंबई में जितना सपोर्ट करते हैं लोग, आई डोंट थिंक सो एनी अदर country or city has that support. Like people will help you make money, यस, people will help you achieve goals in Mumbai. I राइट, mean, I love Mumbai या so much. मुंबई इज वेरी ब्यूटीफुल, इन दैट सेंस इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ स्ट्रगल तो है, थोड़ा स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, but then लोग भी है ना आपको हेल्प या करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए. राइट, राइट, हाँ, लोग भी हैं गाइडेंस देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लोग भी हैं। तो वे बैक मुझे याद है जब मैंने फ्लैट लेने के लिए मैंने प्लान किया था बॉम्बे में, तो उस समय आई वाज जस्ट विथ 1 ईयर ऑफ जॉब, 1 साल ही हुआ था जॉब का। फिर मैं सोचा कि मैं रेंटल जो पे करता हूँ, व्हाई डोंट आई हैव माय ओन फ्लैट? तो मैंने सोचा कि एक फ्लैट लेता हूँ यहाँ। जब मैंने फ्लैट लेने की कोशिश की उस समय बॉम्बे में, तो आई अप्लाइड फॉर द लोन। कुछ पैसे मैंने कमाए थे, और उस ज़माने में शायद 6-7 लाख रुपए में फ्लैट मिलते थे बॉम्बे में। तो मैंने कुछ पैसे कमाए, कुछ मैंने पापा से माँग रहे थे कि इफ आई कैन गेट सम स्मॉल अमाउंट, सम थाउजेंड्स। तो मैंने एक फ्लैट में मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। हम्म. जब मैंने डाउन पेमेंट किया वहाँ पे, तो मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया था, बैलेंस मनी के लिए। जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो लोन वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे याद है उस समय ओह. दीवान हाउसिंग हुआ करता था, जीआईसी, द गवर्नमेंट कंपनीज़, उन्होंने भी वो हुआ करते थे फॉर लोन, एंड दैट टाइम लोन वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। But like, why would they reject you? बिकॉज़ उसका रीज़न क्या था, दे से यू आर ओनली 1 ईयर ऑफ योर वर्किंग, यू डोंट हैव एन एस्टेब्लिशमेंट हियर, Hmm. एंड फॉर गेटिंग अ लोन यू शुड हैव 3 इयर्स ऑफ मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस। Hmm. तब मैंने उनको बोला कि मैं एमबीए किया हुआ हूँ, मैंने एलएलबी कर रहा हूँ मैं, व्हाई डोंट यू गिव मी द फंडिंग, आई विल पे यू द मनी। तो उन्होंने नहीं दिया, बोला कि नहीं, द क्राइटेरिया इज 3 इयर्स होना चाहिए। And तभी इंटरेस्ट कितना था? 18%, Oh my और God. मैं 18% देने के लिए रेडी था। आई एम रेडी टू पे 18%। तो मैंने तो पैसा दे दिए थे बिल्डर को। अब मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोन वाले रिजेक्ट कर दिए। अब मैं सोचा कि ओ माय गॉड, एंड दैट टाइम मे बी आई वाज 23 इयर्स ओल्ड, 24 इयर्स ओल्ड। मैं क्या करूं? मैं एक दिन मॉर्निंग में उठा, मैं Hmm. डायरेक्टली, इट वाज संडे, और बिल्डर्स ऑफिस जा करके बॉम्बे में खुला रहता है ऑन संडेज टू मीट पीपल एंड डिस्कस ऑल दैट। तो मैं संडे मॉर्निंग को मैं बिल्डर के ऑफिस चले गया। मैं बोला, सर, मुझे जो वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो अकाउंटेंट वाले थे, उन्होंने बोला आपको किससे मिलना है? मैं बोला मैंने जो फ्लैट का पेमेंट किया ना, मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। आपके जो हेड कौन है? आपके जो ऑनर। तो बोला कि ऐसे आप कैसे मिलोगे? मैं बोला कि उनसे कुछ मिलना है, कुछ बात करनी है। आपका बैलेंस पेमेंट का क्या हुआ? आपका लोन अप्लाई हुआ कि नहीं? मैंने लोन अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे उनसे बात करनी है। तो मैं उनसे बात करने के लिए, उन्होंने मुझे टाइम दिया। ओके फाइन, सेंड हिम। मैं अंदर गया, सर ने मुझे चाय पिलाया। फिर मैंने सर को बोला, सर, मेरा एक प्रॉब्लम है। बोले, क्या बात है बेटा, बोलो। ही वाज़ लिटिल सीनियर। तो मैंने तो लोन के लिए अप्लाई, आपको तो मैंने पेमेंट कर दिया है, मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन द प्रॉब्लम क्या है कि लोन वाले सब बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आपका ओनली 1 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। तो बोलता है, ओके, तो अब तो पेमेंट किया हुआ है, तो आपका पेमेंट आपको वापस चाहिए, या आपको उसमें से हम डिडक्ट करके आपको हम दे देंगे जो भी हमारा खर्चे हुए हैं? मैं बोला, सर, तो भी मुझे लॉस होगा। व्हाई डोंट यू गिव मी अ लोन? ओह! ही जस्ट गॉट अप फ्रॉम द चेयर। व्हाट? मैं बिल्डर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं मैं पैसा लेता हूँ, पैसा देता नहीं हूँ। आपको मुझसे पैसा चाहिए? मैं बोला, यस सर, अगर आप हेल्प आई यूज्ड टू बी, दिस वाज़ माय साइन। सर, आप हेल्प कर देंगे, सर, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो बोलते हैं, ठीक है। तो उसने असिस्टेंट को बुलाया, बोलता है, और चाय लेकर आओ। तो उसने एक और चाय भेजा, बोलता है कि ठीक है। उसने अपने एक और असिस्टेंट को बुलाया, बोला कि ठीक है, मैं साइन करता हूँ, आई विल पे यू, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो जीआईसी देती है, जो दीवान हाउसिंग देती है, वही इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज करेंगे। चलेगा? जी सर, चलेगा। तो बाद में मैंने उससे साइन कर दिया, मुझे फ्लैट मिल गई बॉम्बे में, मैं रहने लगा। इट वाज़ वेरी स्मॉल, But 1 you took a बेडरूम हॉल, loan from a developer एंड itself. आई टूक अ लोन फ्रॉम डेवलपर। आफ्टर दैट मेरी कंपनी में दुबई भेज दी थी। फिर बाद में मेरे पास पैसे आने लगे थे, बिकॉज़ जब भी मैं दुबई जाता था, कंपनी यूज्ड टू गिव मी द कन्वेयंस। तो उस पैसे से 1 साल, 1.5 साल के बाद मैंने पूरा पैसा सर को दे दिया। Oh, so that
I paid the whole कन्वीनियंस जो loan. मनी था दैट यू यूज्ड टू सेव फॉर आई टू योरसेल्फ। सेव फॉर माई सेल्फ बिकॉज अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कंपनी पे कर रही थी सब, तो वो सब पैसे मेरे खाने के सेव होते थे, ट्रैवलिंग के जो भी जाने आने का सेव होता था, तो वो सब सेविंग करके मेरी सैलरी तो ही रहती थी, वो भी मेरी सेव हो जाती थी। वहाँ पे अलाउंस मिलते थे, उसमें से कभी कभी मैं सेव कर लेता था। या सो बेसिकली यू सेव फ्रॉम योर अलाउंस। अलाउंसेस, या सेव फ्रॉम माई फूड, सेव फ्रॉम माई माई सैलरीज। तो मैंने एक 1.5 ईयर और 2 ईयर्स के अंदर में मैंने उनको पूरा पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाना। तो ठीक है सर। तो जब मैं जिस दिन डॉक्यूमेंट लेने के लिए गया, उस दिन मैंने वहाँ के असिस्टेंट स्टाफ सब थे, उन्होंने मुझे चाय पिलाया, बोला सर आपका सब लोन क्लियर है, अब आपका फ्लैट आपका, अब हमारा कोई लोन आपके साथ में नहीं है। मैं बोला थैंक यू, मेरा बस एक था थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं सोचा कि मैं सर से मिलूँ, मैंने बोला कि आई वांटेड टू से थैंक यू टू हिम। ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर। तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो मैं सोचा कि मैं उनको थैंक यू बोल देता हूँ। एंड एट वाज दैट एज 24-25 ईयर्स ऑफ एज, मैं उस समय भी मैं सोचा कि मैं ग्रेटिट्यूड्स एंड थैंकफुलनेस ये मैं कभी नहीं भूलता हूँ किसी का। तो वो मैंने उनके साथ किया। जब मैं उन्हों तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप अंदर आओ। मैं अंदर गया सर के पास, सर को बोला सर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपने मुझे सपोर्ट किया, अब मैं लोन सब चुका दिया आपका। तो बोलता है गुड। तो मैंने बोला सर आपसे एक क्वेश्चन है। बोलो क्या पूछना है बेटा? सर आपने मुझे 23-24 इयर्स में आपने क्या बेसिस पर लोन दिया मुझे? हाँ वही, सो ही लाइक व्हाई स्टार्टेड डिड ही लाफिंग। ट्रस्ट यू एंड लाइक हाउ डिड यू गेन हिज हाउ ट्रस्ट? हाउ डिड यू गेट द ट्रस्ट? तो व्हाट ही सेड, हम लोग डेवलपर है, बिल्डर्स है, हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, आपके आंखों में मैंने वो फायर देखा। एंड यू आर एन एमबीए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज अ वेल डेवलपर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने आपके आंखों से देख के मालूम हुआ कि आप कहीं जाओगे ना, आप मुझे पे करके जाओगे, आप मुझे 100% पे कर दोगे, मुझे मालूम था आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई ट्रस्टेड यू एंड सी आई एम राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग देयर। और वे बैक दैट टाइम मुंबई में आई स्टिल रिमेंबर एक और इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ में। जब मैं एमबीए का एग्जाम्स लिख रहा था, तो आई वाज स्टेइंग इन द दिस माटुंगा। माटुंगा में मैं था। तो जब मैं हॉस्टल से मैं निकल के जा रहा था, तो रास्ते में मुझे उस गली-गली में लॉट ऑफ दादागिरी हुआ करती थी पहले ज़माने में, वे बैक इन 95, 94, 90 सॉरी 92, 93 में, वे बैक लॉट ऑफ दादागिरी हुआ करती थी। तो एक बार मैं रात को आ रहा था, मैं अपने दोस्त के घर से पढ़ाई करके, क्योंकि मुझे एमबीए का प्रिपेयर करना था। तो किसी ने मुझे पकड़ के 2 मारा यहाँ ओह गाल माय में। गॉड! तो रात का समय था और दैट गाय वाज़ ड्रंक। तो मुझे जब मारा, मुझे हाथ से मारा, तो मुझे मेरे दाँत से ब्लड आने लगे। तो बाद में मैं रास्ते से गया, कोई बात नहीं, मैं इसको पूछा। मैं घर जैसे हॉस्टल में आया, तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे वहाँ पे। "अरे! तुम्हारे दाँत से खून निकल रहा है, क्या हुआ?" मैं बोला, "नहीं, नहीं, किसी ने ऐसे मारा।" "किसने मारा तुमको?" वो सब हॉस्टल वाले सब फ्रेंड्स थे। वो 4-5 लोग मिल के उसी गली में गए, उस लड़के को ढूँढ के बहुत मारा। और जब उस लड़के को मारा, तो फिर जब मैं बोला, "छोड़ दे यार, छोड़ दो, मेरा कल एग्ज़ाम से लिखने है।" उस समय मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एग्ज़ाम लिख रहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई रिमेंबर दैट। टिस का एग्ज़ाम लिख रहा था। जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, मैं बोला, "भाई, मेरा कल पेपर्स है, छोड़ दे उसको।" उसको छोड़ा। नेक्स्ट डे मैं उसी गली से गया, तो सब लोग बोल रहे, ये अपना विजय भाई है, ये अपना विजय भाई। मैं बोला यार एक रात में तो मैं भाई बन गया यहाँ का। ओह माय गॉड! आप माटुंगा के भाई बन गए मतलब थे उस भाई, मैं टाइम बोला पे। ये अपना विजय भाई है, कल रात को उसको बहुत उसको धुलाई किया, ये विजय भाई है भाई, ये बच के ये साइड में विजय भाई है। वो सब लोग उसको, मुझे मुझे फीलिंग हुआ, अरे सब लोग मुझे देख रहे, मैं तो यार एक सीधा साधा इंसान, मैं तो पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो एग्जाम लिखने जा रहा हूँ, मुझे सबसे क्या मतलब है? मुझे तो मेरा मेन गोल है, मुझे पढ़ाई करना, मुझे आगे बढ़ना है। फिर वहाँ से मैं करके जब मैं एमबीए में सीट मिला, देन आई शिफ्टेड टू द हॉस्टल इन केजेसो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर द जॉब इन 1995। या पास आउट होने के बाद में आई वाज इन द जॉब एंड देन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माय करियर। एंड उसके हुँ। बाद आई वाज इन दुबई एट द बिगिनिंग एंड देन आई कम बैक फ्रॉम दुबई एंड 99 2000। उसके बाद देन आई गॉट मैरिड विथ Yeah, 2000 you got married to yeah, yeah. yes. So this is how my story सो ends till there. जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे उस टाइम पे लाइक हमारे एज में लाइक 20, 21, 22 एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, सो व्हाट्स द वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव अस? मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट यू शुड डू, सी यू शुड हैव अ पैशन। हुँ, मुझे कुछ करना है, हुँ, मुझे आगे बढ़ना है। वंस व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ पैशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, यू विल ग्रो। बट एक लाइफ में क्या होता है कि डेडिकेशंस लाने के लिए, सिंसियरिटी लाने के लिए
डेडिकेशन, सिंसियरिटी, मोटिवेशंस लाने के लिए यू शुड हैव अ गोल. इफ यू डोंट हैव अ गोल यू कैन नॉट सक्सीड. मेरा एक ही गोल था, मुझे आगे बढ़ना है, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ. ओके, सो हाँ. गोल ऐसा नहीं होता कि गोल एक चीज़ कि मुझे आज डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. गोल कैन बी इवन अ फीलिंग कि मुझे आगे बढ़ना है, या एनीथिंग लाइक सक्सेसफुल होना, दैट कैन आल्सो बी अ गोल. दैट कैन ऑल्सो बी अ गोल. ओके. सो क्या होता है कि गोल, यू हैव टू सेट अप योर टारगेट, सेट अप योर गोल. और मैंने बहुत सी कंट्रीज में हैव स्टेड. मैंने एमबीए किया, एलएलबी किया, एंड आई हैव ट्रैवल फॉर टू 30 कंट्रीज एंड मोर. मैं बहुत सी कंट्रीज में रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया में, दुबई में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, चाइना, जापान, बहुत सी Okay, so कंट्रीज like में. to give a context, how did you travel to all of these countries, and like what made you travel to all of these या countries तो क्या also? हुआ कि वंस व्हेन आई वाज ऑन द जॉब, हाँ, पहले आई विल एक्सप्लेन यू दैट ये सब जो कंट्री से मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे का, अगर जो जिस बच्चों में इफ गोल नहीं है दे कैन नॉट सक्सीड. Hmm. यू शुड हैव अ गोल इन लाइफ. But like, how do you know what's your goal in life? Oh, That is yeah, like the main that's question. see, How do you know what's my goal? see क्या होता है, आई टेल यू, गोल इन लाइफ कैसे आता है. यू शुड यू शुड असेस योर ट्रेट ऑफ योर पर्सनालिटी, Hmm. दैट आपको क्या बनना है, Hmm. आपको क्या करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे ऑप्शन नहीं था, मुझे जाना था, बट मुझे एमबीए बहुत अच्छा लगता था, एमबीए मार्केटिंग, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन कम्युनिकेशंस, आई वाज वेरी एक्टिव. And you were also not that great in math, या so you तो chose कि तो मैंने communication is a चूज better किया field. कि मैं अपना पर्सनालिटी ट्रेट बनाया कि मुझे क्या मेरे प्लस है, क्या माइनस है. यू मेक अ पर्सनालिटी ट्रेट. पर्सनालिटी ट्रेट में क्या होता है कि व्हाट इज योर नेगेटिव, व्हाट इज योर पॉजिटिव. तो यू टेक आउट योर, डिलीट योर नेगेटिव. अगर आप लाइफ में नेगेटिव सोचेंगे दे कैन नॉट ग्रो. Delete your negative, think of your positiveness, and then you move ahead with that positiveness. And then I made a goal that मुझे marketing ही करना है, because I think I fit into that. I can communicate, I can travel, I can go at any time, and marketing में 24 hour job होता है. You have to be always alert on the job. तो मैंने इसीलिए marketing चुना, because I was very from childhood very daring. I was बहुत साहसी था, plus hardworking था, plus my physical structure was very strong, that मुझे ये काम करना ही है, तो मैं करने लगता था. And Yeah. one more question, what you have, how you, I traveled a lot because Yeah. I was in the international business. जब मैंने एमबीए पास किया, so I got into the job with the agricultural commodities trade. So I was in the export and import. So export and import की वजह से मैंने पूरी वर्ल्ड ट्रैवल की, बिकॉज कंपनी इज टू सेंड मी. मैं दुबई में था, फिर यूएस में मैंने मैंने डिप्लोमा भी किया फ्रॉम दिस नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी से. दैट वाज अ 3 मंथ्स कोर्स. फिर मैंने पढ़ाई, उसके बाद फिर मैंने एलएलबी के बाद फिर मैंने डिप्लोमा कोर्स किया, उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं की. तो ये सब कंपनी ने मुझे भेजा है. कंपनी इज टू सेंड मी. You have worked in export and import since the past 30 years, and you're into Now international now business it's since the getting past 30 years. 30 years now. So how was your journey with job? Like, अगर किसी को advice देना है, if someone is like starting with his job, like I'm starting with my job, like I'm currently working, what's the one advice you would give? See what happens. Uh, I can tell you the youngsters nowadays, once when you're doing a job, you don't do job like a job. Do like your personal. That's a मेरा चीज है. Hmm. Do it full heartedly. Do with your full dedication. Don't do like a job. तो उसमें क्या होता है कि owners of the company will observe you. वो लोग जब काम करते हैं तो उनको लगता है कि एम्प्लॉय अगर केवल सैलरीज के लिए ही काम करता है ना, तो दे कैन नॉट सक्सीड. आज मैं इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, मैं ये सब काम करता हूँ बिकॉज ऑनर्स हैव ट्रस्टेड मी टू डू दैट जॉब, गो देयर, गेट दैट डील क्लिक. दे ट्रस्टेड. सो ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब वंस व्हेन यू आर डेडिकेटेडली डूइंग योर वर्क फॉर द कंपनी. But then, how would you balance your life if you're just dedicatedly working? यस. So how would you balance your life? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ये Okay. थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा, होता है. you agree कि ऐसा प्रॉब्लम हो ऐसा सकता है to problem- balance your life? ऐसा Okay. प्रॉब्लम होता है बिकॉज क्या होता है कि कैरियर में वंस व्हेन यू ग्रो अप टू दैट हायर लेवल, आपका होम सोशल लाइफ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है. बिकॉज वंस व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू ग्रो अप इन द लैडर ऑफ द कंपनी, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो दैट इज हाउ आई वाज वेरी लकी टू हैव माय वाइफ, योर मॉम. शी अंडरस्टूड माय जॉब, अंडरस्टूड माय रिक्वायरमेंट, बिकॉज आई यूज्ड टू बी ऑलवेज ट्रैवलिंग. महीने में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आई एम आउटसाइड ऑफ द कंट्री. तो शी अंडरस्टूड दैट ऐसा प्रॉब्लम होता है. तो वन शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. एंड वर्क एंड लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम्स तो होंगे. Yeah. वंस व्हेन यू आर गोइंग टू द टॉप लेवल, ऑटोमेटिकली योर बेसिक एंड द सोशल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. Yeah. बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एजुकेट, टू गिव डेडिकेशन, टू मोटिवेट यू.
ये सब मैंने बहुत किया फैमिलीज में. Yeah, like Mama has been a greatest support, like for you and for me both. Yeah. And yeah, she has seen everything. And now to you both also travel together only. Yeah. And that is how, and now I travel a lot with her, but sometime when I don't get time, I tell her to come directly. So she also travels a lot Yeah. by her own. What's the one lesson that you learned back then when you were young? And what's the lesson that you have learned in your 20s? And what's the lesson you have learned in your 30s? Okay, that's So what's a, the lesson that you learned in your 20s? that's a good, that when I Okay. was under 20, मैंने एक ही लाइफ में सीखा है कि be daring, साहसी बनो, and be hard work. Okay. तो That is in ये your मैंने 20s. देखा है. At 20s I was very daring and very hard working. स्पोर्ट्स भी करता था, पढ़ाई भी करता था, रनिंग भी था, फुटबॉल भी खेलता था, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था. आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन एवरीथिंग, एंड वी डोंट Okay. नो ये सब एक्टिवनेस कहाँ काम आएगा. So basically, when you're in 20s, you have a lot of energy. So like do whatever Yeah. you want. Keep on indulging with a lot of new activities, and you never know ki what's work the best for you. Yes, You never that's know true. that. Huh. We never know, but because everything is determined by the God, so हमको मालूम नहीं है. But be active. Like just keep on experimenting. Experimenting. So like 20 everything. should be your experimental phase where you don't know Right. what's right, what's wrong. Just go with the flow and Right. keep on working hard. Okay. Right. So what's the lesson that you learned in your 30s? Then उसके बाद मैंने देखा है कि on Like 30s 30 से 40 30 के to बीच 40s में I have seen that work life balance is little difficult once Oh, if you, in your 30s and 40s. Okay. 30s and 40s, Okay. because once when you are growing in the company, maybe उनको company owners they need you have to also grow with them. तो उसमें जब grow करते हैं तो ultimately you cannot, but if your supporting partner is good, they will understand the situations, they will motivate you, and to grow you also. I have जब आप छोटे थे तो what I have done to you, पहले मैं आपको बहुत डिसिप्लिन में रखता था, if you remember, and I used to also sometimes I used to slap you. We'll talk about this all in the next Yeah. video. तो उसमें क्या होता है कि you have to be more dedicated, more work life balance में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, but you have to be more dedicated on the job. Okay, so like हाँ, whatever you do in your 20s, Yes. फिर आप कुछ एक चीज पकड़ लोगे in your 30s, yes, and फिर उसमें like all in in your 30s to 40. Okay. right. So right. now that everything is going as per the pace, and like now everything is like chill also. You have gained success, you have also been a good dad, and you've also been a good husband, and now थोड़ा life थोड़ा chill हो गया है. So now what is your advice now in your 50s? Oh, now my advice is that now I don't want to work more now. Okay. I'm out of 30 years of my job now. I want to be more on the as a professor to the universities and the management institutes and the Okay. colleges, to guide and advise of my 30 years of my experience in life. Okay, so now you still want to work, but your work has changed into being a professor and educating Yes, people educating of what you people. have learned and share your Right. experiences. This is Yeah. what you want to do now. Correct. This is what I have planned to Okay. do, that so I can guide people, I can guide the youngsters, I can teach them, because I have traveled a lot all the years for 30 years. So now I'm thinking to guide students, teach them, motivate them, set up their goal, achieve for the country, for themselves, for the society. This is what my future plan is. Okay. Thank you so much for your time, and thank you for guiding us. And now with this, we end our podcast, and just stay tuned for the next episode. See you all until next time. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you.